नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। आरटीसी मुलाजिमीन के जेएसी ने अपनी 52 रोजा हड़ताल को खत्म कर देने का ऐलान किया है। जेएसी के अचानक फैसले की तफसीलात का इल्म नहीं हो सका। जराये के मुताबिक हुकूमत के सख्तगीर मौक़िफ़ और मुलाजिमीन के नुमाइंदों से बातचीत करने से इनकार के बाद मुलाजिमीन हड़ताल खत्म कर देने पर मजबूर हुए हैं। जेएसी ने तमाम मुलाजिमीन से अपील की कि वो कल से काम पर रुजू बेकार हो जाएं और अपने अपने डिपोज में हाजिरी दर्ज करवाएं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आया आरटीसी इंतजामिया इन हड़ताली मुलाजिमीन को दोबारा काम पर लेगा या नहीं, ये वाज़ेह होना बाकी है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि हुकूमत ने हड़ताली मुलाजिमीन को 2 मरतबा ड्यूटी पर रुजू होने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन आरटीसी मुलाजिमीन अपने मौक़िफ़ पर अड़े हुए थे और वो उनके मुतालबात कबूल किए जाने तक हड़ताल खत्म न करने पर बजिद थे। మరి అదే ఇదే సందులో మరి కొంతమంది అధికారులు మరి దేశంలో దొంగలు పడ్డారనే విధంగా అయితే ఆర్టీసీ ఆస్తుల పైన కూడా ఈ 45 రోజులు 50 రోజులు ఆర్టీసీ ఆస్తులను కూడా మరి ఎంతో నిర్వీర్యం చేయడం జరిగింది. ఈ క్రమంలో మరి కొత్తగా వచ్చిన టెంపరీ డ్రైవర్ కావచ్చు, కండక్టర్ కావచ్చు, వాళ్ళని అనట్లేదు. మేము నిరుద్యోగ సమస్య ఉండి వాళ్ళ ఉద్యోగాలకు వచ్చారు. కానీ అది కొంతమంది అధికారులు ఆర్టీసీని అమ్ముకునే ప్రయత్నాలు కూడా చేయడం జరిగింది. మరి ప్రభుత్వం కూడా ఆ దిశలో భాగంగా మరి రూట్లను ప్రైవేటు పరం చేస్తూ అయితే కార్మికుల పోరాటాన్ని చిన్న చేస్తూ మీకు పోరాటం తక్కువ కాదు, ఇది నైతిక విజయం కార్మికులదే. ఇలా యావత్ దేశాన్ని మరి ప్రపంచాన్ని పోరాటం ఆకర్షించింది. ప్రప్రదంగా మరి 5 సంవత్సరాల చరిత్రలో 6 సంవత్సరాల చరిత్రలో సమస్యలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే ఘనత ఈ ఆర్టీసీ కార్మికులది. ఇక్కడ ఆర్టీసీ కార్మికులు ఎవరు ఓడిపోలేదు, ప్రభుత్వం గెలవలేదు. మీరు ఎవరు అధైర్యపడవలసిన అవసరం లేదు. ఖచ్చితంగా ఈ పోరాటం దశలవారీ పోరాటం కొనసాగుతుంటది. అదేవిధంగా ఈ ఆర్టీసీని రక్షించుకునే క్రమంలో హైకోర్టు ఇచ్చిన సూచన మేరకు మరి ప్రభుత్వం లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ కు మా కార్మికుల సమస్యలను రిఫర్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. మరి రిఫర్ చేసి ప్రశాంతమైన వాతావరణ పరిస్థితులు కల్పించాలని యాజమాన్యానికి ప్రభుత్వానికి మేము లెటర్ ఇచ్చినా కూడా స్పందించకుండా 5 రోజుల నుంచి 6 రోజుల నుంచి కాలయాపన చేయడం, ఉద్దేశపూర్వకంగా కార్మికులు మరి ఆర్టీసీలో లేనప్పుడు చూసి కొన్ని కొత్త విధానాలు తీసుకొచ్చి ఈ రోజే గవర్నర్ గారి దగ్గరికి జీవో తీసుకెళ్లి 5,100 రూట్లకు పర్మిట్ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆర్టీసీ కార్మికులు మరి ఎన్నో రోజులు బయట ఉండి మరి కోర్టు ఆర్డర్ వచ్చాక కూడా ఈ సమ్మెలో కొనసాగితే మరి ప్రభుత్వం ఈ ఆర్టీసీని ప్రైవేట్ పరం చేసే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి దీన్ని అడ్డుకోవడానికి, దీన్ని ఎదుర్కోవడానికి మరి ప్రభుత్వం స్పందించకపోయినా రేపు మనమంతా కార్మికులంతా పెద్ద ఎత్తున రేపు మార్నింగ్ అందరం డిపోలకు వెళ్లి మన విధులను నిర్వర్తించే విధంగా ప్రభు యాజమాన్యం పైన ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి మరి ప్రైవేటు ఎన్ని రోజులు నడిపిన సోదరులకు 45 రోజులు నడిపిన 50 రోజుల నుంచి బస్సు నడిపిన సోదరులకు కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, తప్పని పరిస్థితుల్లో మీరు ఉద్యోగాలకు వచ్చారు. మరి ఈ రోజు మేము ప్రజా కోణంలో కార్మిక కోణంలో ఆర్టీసీ ఆస్తులను రక్షించుకోవాలని, ప్రజా రవాణాను కాపాడుకోవాలని ఆర్టీసీ కార్మికులంతా రేపు విధులకు హాజరు కావడానికి సిద్ధమైన తరుణంలో మీరు ఇన్ని రోజులు డ్యూటీ చేసినందుకు మాకు ఎలాంటి కోపం లేదు. మేము రేపు దయచేసి రేపటి నుంచి మీరు విధులకు రాకుండా మమ్మల్ని డ్యూటీ చేసుకునే పరిస్థితి మీరు అందరూ కల్పిస్తారని ఈ ప్రైవేటు కాంట్రాక్ట్ వాళ్ళకు కూడా టెంపరీ మిత్రులకు కోరుతున్నాము. రేపటి నుంచి కార్మికులందరూ పొద్దునే ఉదయం 6 గంటలకి అందరూ డిపో దగ్గర సెకండ్ షిఫ్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉదయం డిపో దగ్గరకు వచ్చి మన డ్యూటీలు మనం డిమాండ్ చేసి మన బస్సులు మనం నడిపి మన యొక్క విధులకు హాజరు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. सेंट्रल जोन की टास्क फोर्स पुलिस ने अफीम का धंधा करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 4.5 किलो अफीम जब्त की है, जिसकी मालियत मार्केट में लाखों रुपए बताई जाती है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान का मुतवत्तिन गंगाराम बिश्नोई कुतुबुल्लापुर में रहता था और अपने भाई के साथ, जिसका नाम भिकाराम बिश्नोई है, लोगों को घरों पर अफीम डिलीवरी करता था। एक इतना मिलने पर पुलिस ने उसे जाल बिछाकर बोयनपल्ली के इलाके में गिरफ्तार कर लिया। आगे की तहकीकात जारी है। ये ड्रग्स ओपीएम स्मगलिंग का केस है और ड्रग्स एंड नारकोटिक्स एक्ट के तहत इसमें अरेस्ट हुए हैं लोग और उनसे 4.23 केजी ओपीएम का रिकवरी हुआ, अफीम। जैसा आप जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में प्रोसेस्ड अफीम का कीमत लगभग 70 से 80 लाख रुपए पर केजी है। ये रिकवरी के साथ एक होंडा एक्टिवा बाइक, एक सेलफोन, 2 डिजिटल वेइंग मशीन, पॉकेट वेइंग मशीन और इस पूरे प्रोसेस में टास्क फोर्स ने एक क्रिमिनल को अरेस्ट किया और दूसरा भी एब्सकॉन्डिंग है।
ये दोनों क्रिमिनल ओरिजिनली राजस्थान के जालौर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। और पहला क्रिमिनल जो अरेस्ट हुआ गंगाराम बिश्नोई एलियस गंगाराम, एज 36 इयर्स, ये विभिन्न पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अयोध्या सेंटर कोंडलकोया विलेज मेडचल में रहता है अभी, और ओरिजिनली जालौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का रहने वाला है। और इसका जो दूसरा पार्टनर है भीखाराम बिश्नोई, जिसका एज 35 इयर्स है, और ये खारा विलेज तालुक रानीवाड़ा जालौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का रहने वाला है। ये लोग बस से ये पूरा ओपियम राजस्थान से यहां लाते थे और जोधपुर से हैदराबाद, जो कि लगभग 1018 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहां से ये लोग बस में ये सामान लाते थे। इसके ऊपर अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा इसका क्या लिंक है, कहां से खरीदता था, इसके सप्लायर कौन कौन थे, कहां ये बेचता था, ये सब आगे पता चलेगा। इसमें पब्लिक से हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस तरह का कुछ इंफॉर्मेशन अगर आपको मिले तो आप इमीडिएटली हमारे डीसीपी साहब को, एसीपी साहब को, स्टेशन हाउस ऑफिसर साहब को मदद करें, बताएं, और इस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। आज के इस सक्सेसफुल ऑपरेशन में हमारे टास्क फोर्स डीसीपी पी राधाकिशन राव के लीडरशिप में ये पूरा ऑपरेशन हुआ, और उनके साथ मोहम्मद अब्दुल जावेद, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर टी श्रीधर, श्री मोहम्मद शाहनवाज, श्री के श्रीनिवासलू और एंटायर सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की टीम बहुत बेखूबी से अपना काम करी, और उसके लिए हमारे तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। खुद को पुलिस जाहिर करते हुए लोगों को लूट लेने की वारदात में मुलविस 2 अफराद 50 साला जय नागेश्वर और 53 साला जय रामैया को पुलिस आबिद रोड ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि इन दोनों ने 21 नवंबर को कर्नूल से शहर पहुंचने वाले एक शख्स वेंकटेश्वर को सेंट्रल बस स्टेशन के पास रोक लिया और फिर उसे अपनी बाइक पर बिठाकर खान लतीफ खान स्ट्रीट फतेह मैदान ले गए, जहां उन्होंने उसे डरा धमका कर उसके पास से 1300 रुपये लूट लिए थे। पुलिस ने बताया कि दोनों मुलजिमीन रामकोट के इलाके में भी एक शख्स को इसी तरह रोककर उसके पास से 80,000 रुपये लूट लिए थे और उस पर इल्जाम लगाया था कि वो जाली नोटों का कारोबार करता है। कमिश्नर पुलिस ने हैबिट पुलिस को इस सिलसिले में मुबारकबाद दी। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान कपिल देव ने आज जीएचएमसी ऑफिस में वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन केटी रामाराव से मुलाकात की। समझा जाता है कि उन्होंने गोल्फ क्लब की सरगर्मियों को फरोग देने पर बातचीत की। इसी तरह रियासती वजीर केटी रामाराव ने बल्दी नजरनश के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें ट्रैफिक जंक्शन को खूबसूरत बनाने, फुट ओवर और स्काई वॉक, ट्रैफिक लाइट्स की तनसीब और बस शेल्टर्स की तामीर जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया। केटी रामाराव ने सेहत आमा और साफ सफाई जैसे उमूर पर तफसीली गौर व भी किया। पुलिस काला पत्थर ने गुज़िश्ता जुमे को एक 45 साला शख्स मोहम्मद अहमद के कत्ल के सिलसिले में मुलविस 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर पुलिस एस सुदर्शन ने मीडिया को बताया कि काबा किराना स्टोर मक्का कॉलोनी काला पत्थर में हुई इस वारदात के पीछे आपसी मखासमत थी। मुलजिमीन के नाम 33 साला मोहम्मद अजमतुल्लाह
19 साल अब्दुल सुबहान, 19 साल अब्दुल समद खान, 22 साल मोहम्मद सोहेल खान, 27 साल मोहम्मद सलमान अली खान, 23 साल हैदर हुसैन, 19 साल अब्दुल अजीज, 19 साल मोहम्मद अजहर और 17 साल मोहम्मद फरीदुद्दीन शामिल है। मुजरिमीन के कब्जे से हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार, 4 टू व्हीलर्स और 4 सेलफोन की जब्ती भी अमल में आई। मक्का कॉलोनी में 22 तारीख रात में 9:30 बजे एक ब्रूटली मर्डर हुआ। ये मर्डर इलीगली कॉन्ट्रैक्ट से मर्डर हो गए। ये एक औरत और मोहम्मद अहमद बोल के 5 साल से इलीगल इंटीमेशन है। इसके बारे में बहुत घर वाला समझा है, मगर औरत और वो डिसीज नहीं सुना, जो मर गए साथ में भी नहीं सुना। उसके बाद 2 साल पहले फिर ये घर वाले उसको मारा था, उसके ऊपर दोनों मार लिया। पुलिस स्टेशन का गए तो पीटी केस डाल दिया, हाथों से मार लिया। तो 2 दिन जेल को भी जाके आ गए, इधर तरफ से जाके आए, उन्होंने भी मोहम्मद अहमद भी जाके आए। आने के बाद भी बड़े लोग हैं, ये अच्छा नहीं है, घर करके निकल जाना नहीं है तो किसके घर में उन्होंने रहना बोल के समझा के ये कर दिया। थोड़े दिन के बाद फिर वो लोग नहीं सुना, फिर यही काम उसका मर्द ऑटो चलाने को बाहर निकल गए थे और बच्चा स्कूल को जाने के बाद औरत इसको फ़ोन करके बुला लेके घर को बुला लेके थे। बच्चों देख के भी ना ये हो गए। उसके बाद 15 दिन से उसका बड़ा बेटा उसका मामू के पास आ गए, ये था हम कॉलोनी में नहीं रह सकते, बेइज्जत हो रहा बोल के इसके पास आके रोल गए। आज उसको ख़त्म करे तक मैं खाना भी नहीं खाता बोल के ये करके उसका मामू को रिक्वेस्ट करता आज कैसे तो करेंगे बोल के 15 दिन से प्लान करके 22 तारीख रात में 9:30 बजे वो जो प्लान हिसाब से 4 आदमी हथियार लेके मार दिया और 5 आदमी उसको सपोर्ट कर दिया, मास्क और व्हीकल्स अरेंज करके आप फ़ौरन पुलिस स्टेशन सरेंडर होना है तो दूर से निकल जाना बोल के आने के बाद हम मदद करते बोल के उसको जो भी इंकरेज करा वो लोगों को भी सबको ये केस में इन्वॉल्व करके आज अरेस्ट कर दिया। ये केस प्यूरली इलीगल इंटीमेसी से ये केस ये हो गए, मगर ये ब्रूटली मर्डर, इसमें पूरा इंक्वायरी करके पूरा प्रॉपर्टी तलवारा सीज करा, व्हीकल्स भी सीज करके फोन सेल फोन सीज करके आज कोर्ट में पेश कर। एआईसीसी किसान सेल के नायब सदर एम कोदंडा रेड्डी ने रियासत हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों की हालत पर रहम करे और उनके कर्जों को माफ़ करे। गांधीवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नाअहली की इंतहा हो गई है, 11 लाख अफराद अब भी पट्टा बुक से महरूम है। कोदंडा रेड्डी ने कहा कि अब्दुल्लापुर मीट का वाकया रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्शन के गरम बाजार की मुंह बोलती तस्वीर है। तेलंगाना स्टेट में किसानों के मसाइलों को दूर करने के लिए पिछले 6 साल में 2014-2018 में टीआरएस गवर्नमेंट बहुत ही वादे करे, लेकिन वादे पूरे नहीं किए। एक इलेक्शन का 5 साल गुजर गया, 2018 दिसंबर को इलेक्शन हुआ, अच्छा मेजॉरिटी से टीआरएस गवर्नमेंट सरकार आई स्टेट में, लेकिन किसानों के मसले जहाँ के वहीं रह गए। खासकर किसानों के कर्जों को माफ़ करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने असेंबली में वादा किया। अभी ये जो नया ये 2018 और 19 के इस बीच में अभी 38,000 करोड़ रुपए का किसानों का माफ़ी जिन लोगों को करना है अभी तक नहीं किया। 1 साल हो गया असेंबली में अनाउंसमेंट करके। दूसरा, ये किसानों को हर साल 2 बार रबी और खरीफ में 5-5 हज़ार रुपये, रबी में 5 हज़ार रुपये, खरीफ में 5 हज़ार रुपये पर एकड़ देने का वादा किया, लेकिन आज तक 12,000 करोड़ रुपए इसके लिए होना था, अनाउंसमेंट किया, देने की अलॉटमेंट हुआ, लेकिन अब तक सिर्फ 5,000 करोड़ ही जो है किसानों को खाते में जमा हुआ। अब रहा
किसानों को फसल के पहले बैंक से कर्जा मिलता, लेकिन जिस तरह से मिलना है, जितना मिलना है, नहीं मिल रहा है। नहीं मिलने की वजह से गांव में क्या कर रहे हैं, प्राइवेट लेंडर्स के पास इंटरेस्ट ज़्यादा देके कर्जे कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हजारों किसानों फिर कर्जा पेड़ने के लिए पैसा नहीं रह के और गवर्नमेंट नहीं देने के वजह से, फसल खराब होने के वजह से नुकसान होके कई किसानों ने आत्महत्या किया। मैं आखिरी में एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि निज़ाम के दौर से कांग्रेस के दौर तक गाँवों में हर एकड़, हर गुंटा सर्वे, रिकॉर्ड वगैरह ठीक रहता था। लेकिन न जाने क्या हुआ, केसीआर ने एक अनाउंसमेंट कर दिया इलेक्शन से पहले 2018। उनके दिल में ये था कि किसानों को रैतु बंधु के नाम से पैसा देके वोट लेने का मंशा था। हम जब भी बोले कि बिल्कुल जो है ये खासकर आपने इलेक्शन के नज़र में रख के, मद्देनज़र में रखते हुए आपने अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो है हमेशा के लिए देना, लेकिन नहीं दिया। अभी देखिए 2 साल हुआ, ना सर्वे हुआ, किताबें बांटे गए कुछ। अभी तक तेलंगाना में 32 जिलों में, पुराने 9 जिलों में 11 लाख किसानों का किताबा अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा। उसके वजह से किसान बेहद परेशान है और यहाँ उनको खरीफ में जितना रैतु बंधु में मिलना था उसमें सिर्फ 50% आधा ही मिला। खासकर एक बात याद दिलाना चाहता हूँ मैं, हम पहले ही बोल रहे थे कि जो है इलेक्शन में वोटों के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल साबित ये हुआ कि हाल में हुजूर नगर में बाई इलेक्शन हुआ, वो सूर्यापेट जिला में आता। सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट में जिस जगह जो है बाई इलेक्शन हो रहा है वहाँ रैतु बंधु अमाउंट दिया गया, लेकिन बाकी 31 जिलों में नहीं दिया अभी तक। मकसद क्या है, आप सिर्फ जो है वोटों के लिए इलेक्शन टाइम में किसानों को ये रैतु बंधु के नाम से पैसा देके फिर बाकी लोगों को अभी तक जो है तकरीबन 11 लाख किसानों को किताबा नहीं मिला, रैतु बंधु नहीं पहुंचा। इसलिए हम इस सरकार से हम चेतावनी देते हैं कि केटीआर ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वो ओहदेदार स्ट्राइक किए तो बुला के बात करें, क्यों नहीं आप किसानों से बात नहीं करें। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग 2 दिन स्ट्राइक करते ही जो बुला के बात कर लिए। मैंने फ़ोन किया केटीआर को, अभी तक जवाब नहीं है। तो इसलिए मैं वेरी सीरियसली बहुत ही जो है किसानों के मसले में ये बिल्कुल इस गवर्नमेंट कोई बात को नहीं निभाया, इसके वजह से किसान बेहद परेशान है। मुल्क भर में एटीएम मशीनों को उखाड़ ले जाने और उसमें लूटमार के वाकयात में कमी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2019 और 20 का डाटा जारी करते हुए ये बात बताई। इसकी असल वजह एटीएम मशीन की हिफाजत और शब-रोज उसकी निगरानी है। तेलंगाना में एटीएम मशीनों को लूट लेने की सिर्फ 7 वारदातें हुई हैं। सेक्रेटरी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन MS कुमार ने बताया कि पुलिस के सख्त इकदाम की वजह से ऐसे वाकयात में कमी आई है। CCTV से भी ऐसे वाकयात पर नजर रखने में मदद मिली है। सिटी पुलिस ने आसिफ नगर में कनारा बैंक के एक ATM मशीन को लूट लेने की वारदात के सिलसिले में जो 3 नवंबर को पेश आई थी, 2 अफराद खालिद कमाल अहमद और मोहम्मद रियाज को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV सजना ने ATM मशीनों को किस तरह महफूज रखा जा सकता है उस पर बैंकरों के साथ एक इजलास भी मुनक्किद किया था। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो
सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हुकूमत आंध्र प्रदेश ने करप्शन से मुतालिक शिकायत की वसूली के लिए एक अलहदा सेल कायम किया है। चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस में एक हेल्पलाइन नंबर 14400 भी जारी किया। जगन मोहन रेड्डी के हाथों इस मौके पर एक पोस्टर की इजराई अमल में आई। वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बोस्सा सत्यनारायण, DGP गौतम स्वांग और एंटी करप्शन के आलादार भी इस मौके पर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने सबसे पहले फोन करते हुए हेल्पलाइन से उसकी कारकर्दगी के बारे में मालूमात हासिल की और कहा कि शिकायत की वसूली के 15 दिन के अंदर तहकीकात मुकम्मल कर लेनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर दफा 370 की बर्खास्तगी और राम मंदिर तनाज़े को 70 साल तक मोरद अल्तवा में रखने का इल्जाम आयद किया। झारखंड के मुजद्दा असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में पलामू में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की सियासत की खातिर इन मसाइल को पशपुश डाल चुकी थी। बीजेपी ने उनके हल का वादा किया था और वो अपने वादे को पूरा करके दिखाया है। झारखंड में यह वज़ीर-ए-आज़म की पहली रैली थी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर तनाज़ा खत्म हो गया है और इससे हर कोई खुश है। उन्होंने कहा कि झारखंड को एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत दरकार है और गुज़िश्ता 5 साल के दौरान जो तरक्याती काम हुए हैं उन्हें मजीद 5 साल तक जारी रखना है। वज़ीर-ए-आज़म ने नक्सलिज्म को रियासत में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह बताया और कहा कि का खात्मा करना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस, JMM और RJD महाज पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि ये सब इख्तिदार की लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर इन्हें कामयाबी मिलती है तो रियासत झारखंड फिर से अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगी। उन्होंने बताया कि मुल्क में हर तरफ कमल खिल रहा है और उसे आवाम का भरपूर आशीर्वाद हासिल है। आयो बाबा, गावा भैया, भाई बहन, मन के हमार बटले जोहार। भगवान बिरसा मुंडा, गुमला के वीर योद्धा श्री तेलंगा खड़िया, वीर बुधु भगत, वीर चांद भैरव, वीर सिद्धू कानो, वीर जत्रा टाना भगत, बख्तर साई मुंडन साई जैसे अनेक सेनानियों को, राष्ट्रभक्तों को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मंच पर विराजमान मंत्री परिषद के मेरे साथी, देश के आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित मेरे मित्र भाई अर्जुन मुंडा जी, श्री राम विचार नेताम जी, दीपक प्रकाश जी, समीर उरांव जी, संसद के मेरे साथी समीर जी और सुदर्शन भगत जी, श्रीमान भुवनेश्वर साहू जी,
श्रीमती सुनैना कुमारी, श्रीमती किरण माला बादा, श्रीमान अरुण उरांव, श्रीमान राजमोहन राज, श्रीमान सविंद्र सिंह, श्रीमान संजय ठाकुर जी। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी होनहार उम्मीदवार सीसई से श्रीमान दिनेश उरांव जी, दिनेश जी आइए, गुमला से श्रीमान मिसिर कुजूर जी, सिमडेगा से श्रीमान श्रद्धानंद बेसरा जी, बिशुनपुर से श्रीमान अशोक उरांव जी, मांडन से श्रीमान देव कुमार धान जी, कोलीबेरा से श्रीमान सुजान मुंडा जी, लोहदरगाह से श्रीमान सुखदेव भगत जी। मेरे साथ भारत माता की जय बोल करके दोनों हाथ ऊपर करके महाराष्ट्र की सियासी सूरत हाल और हाड़ाउड़ी में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर का हलफ दिला दिए जाने पर अपोजिशन अरकान ने आज लोकसभा में जबरदस्त हंगामा किया और इजलास की कार्रवाई को रोक दिया। चुनाव सभा में 2 मरतबा और फिर सपहर दिन भर के इजलास को मुलतवी करना पड़ा। कांग्रेस के अरकान प्ले कार्ड और बड़ा बैनर थामे ऐवान के वस्त में पहुंच गए थे और नारेबाजी करने लगे। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती और ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने की पुरजोर वकालत की ताकि दोनों ममालिक तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ सके। ताहम उन्होंने कहा कि ISI की पुष्पनाई से अपनी सरगर्मियां जारी रखने वाली तंजीम सिख फॉर जस्टिस को अमन अमान और फिरका वाराना मांगी को मुतासर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी की 550वीं यौम पैदाइश के सिलसिले में बरतानिया के शहर बर्मिंघम में हिंदुस्तानी सिखों के एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पड़ोसियों के साथ दोस्ती और अच्छे ताल्लुकात वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी के फलसफे में आलमी मसाइल का हल मौजूद है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक बुरे वक्त से गुजर चुके हैं, उन्हें इस मिलजुल कर आगे बढ़ना है। उन्होंने करतारपुर राहदारी को खोलने के फैसले को दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और अच्छे ताल्लुकात की सिमत पहला कदम बताया। चीफ मिनिस्टर ने बरतानिया में मुकीम सिखों को पंजाब इन्वेस्टर्स समिट में शिरकत करने की दावत दी जो 5 और 6 दिसंबर को पंजाब में मुनक़िद होने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में एक हिंदुस्तानी टैक्सी ड्राइवर ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से किराया लेने से इनकार कर दिया और उन्हें मुफ्त राइड दे दी। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलने ब्रिस्बेन शहर आई हुई है। बताया जाता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उनकी होटल से डिनर के लिए एक हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट को ले जाना था। ड्राइवर के किराया लेने से इनकार पर इन खिलाड़ियों ने उसे अपने साथ ही डिनर के लिए ही बिठा लिया। इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों में शामिल शाह अफरीदी, बाबर शाह और नसीम शाह थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।